Hello everyone. In today's lecture we are going to discuss C program to print the sum of the natural numbers. In the previous video we have discussed about the how to print the natural numbers. Now we are in this lecture series we are going to discuss how to print the sum of the natural numbers. So basically सबसे पहले हम कुछ natural numbers को यहाँ पे लेके चलते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So these all are the natural numbers from 1 to 7, and always remember natural numbers always start from 1. If you start it from 0, then it will be considered in the whole numbers. Okay, so a natural number always start from 1. So to sum up these numbers we are going to perform addition operation. 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Now let's do add them. 1 plus 2, 3, 3, 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15, 15 or 6, 21, 21 plus 7, that means 28. So the sum is 28. So now we will see how to implement this logic in C programming language. So let's see. So सबसे पहले हम जो अपनी header files को यहाँ पे मेंशन करेंगे hash include stdio.h, and we have a main function also, int main function, and now we are going to declare some variables over there, int n, and I is always set to 1 because when we will run the loop the I will always start from 1. If we set I equal to 0, then the number will be printed from 0, and that's we do not want to do it. Remember that key natural numbers always start from 1, not from 0. If we start from 0, then it will be counted as whole numbers. So we are going to set I equal to 1 here. So now another variable we will declare it sum, and it will get initialized with 0 initially. So now we have got the three memory blocks here, and I and sum. Initially in n we have not defined anything. In I variable we have initialized it by 1, and the sum variable has been initialized by 0. Now what we will do, we will take input from the user, printf, enter a number, enter the size, not number, enter the size, new line character, and now scanf to read the input, percentile d, comma ampersand n. So suppose that user gives the input and enter the size as 7. Okay, now what we will do, we will use a while loop here while I is less than equal to n, and inside this while loop what we are going to write it, sum equal to sum plus I, sum plus I and I प्लस प्लस. ऑलवेज रिमेंबर आपको वाइल लूप के अंदर जो है आई प्लस प्लस जो है लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो लूप है वो कंटिन्यूसली जो है अगेन एंड अगेन जो है रिपीट होता रहेगा. अगर आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 जो है आपको अगेन बार बार जो है कंपाइल होता रहेगा. तो इसलिए हमें आई को यहाँ पे डिक्रीमेंट करके चलना है. ठीक है, हमें आई को हमें यहाँ पे अपडेट करके चलना है, नहीं तो जो है आपको फालतू का जो एग्जीक्यूशन है वहाँ पे परफॉर्म हो रहा होगा, इसकी वजह से सम मेमोरी वेस्टेज जो है आपकी वहाँ पे हो रही होगी. ठीक है, अब लेट्स सी, अब इसका लॉजिक देखते हैं एक्चुअली है क्या. हमने क्या किया है, आई को 1 पे सेट किया और हमने यूज़र से एक साइज़ लिया, डेट मीन्स n इक्वल टू 7. तो इसका साइज़ यहाँ पे जो है डिफाइन हो गया कि हम 7 तक जो है यहाँ पे अपने आई को चलाने वाले हैं, यानी कि आई लेस देन इक्वल टू क्या है n, यानी कि आई मेरा 1 से लेकर 7 तक चलेगा. अगर यहाँ पे आई लेस देन 7 होता, मतलब आई लेस देन n होता, तो मेरा जो लूप है यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक चल रहा होता. ठीक है, बट यहाँ पे इक्वल टू कंडीशन भी है, लेस देन के साथ साथ लेस देन और इक्वल टू n, यानी कि आई मेरा 1 से लेकर 7 तक यहाँ पे चलने वाला है. तो लेट्स सी, सबसे पहले क्या है मेरे पास, आई इक्वल टू 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन इज ट्रू. ओके, कंडीशन ट्रू है तो हम इस वाइल लूप के अंदर जो है एंटर हो जाएंगे. अब सम इक्वल टू क्या है, सम प्लस आई. सम में क्या है आप देखोगे तो इनिशियली 0 है, तो 0 प्लस आई, मैं चलो उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा रफली यहाँ पे लिख लेता हूँ. तो सम इक्वल टू क्या है आपके पास, सम क्या है 0 है,
प्लस सम प्लस आई कितना है पहले 1 है, सो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आने वाला है 1 आने वाला है, तो सम में क्या अपडेट हो गया आपका 1 अपडेट हो गया। चलो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, सम इक्वल टू कितना आपका 1 है। ओके, अब नाउ क्या हो गया, अब क्या होगा इसके बाद आई प्लस प्लस होगा, यानी कि आई विल गेट इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो आई बिकम्स नाउ 2, आई बिकम्स 2 हेयर, 2 हो गया आई। अब अगेन जो हम इस लूप के अंदर ही चलेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन इज ट्रू, so now we will enter in this while loop here. Now I is 2 here, and what is the sum is now updated as 1, so 1 plus 2, 1 plus 2, because I is 2 now ना, आई कितना हो गया 2 हो गया, सम में क्या हो गया 1 है, 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो गया, तो ये 3 जो है कहाँ पे आके अपडेट होगा, सम में जाके अपडेट होगा, यानी कि सम जो है मेरा जो कुछ भी था कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। ओके, अब नाउ आई यहाँ पे क्या होगा मेरा इंक्रीमेंट होगा, आई प्लस प्लस आएगा, तो आई प्लस प्लस डेट मीन्स आई इज़ 3 नाउ, आई 3। अब वापस इस लूप के अंदर ही हम चल रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो बस वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे। नाउ आई कितना है मेरे पास 3 है, और सम कितना है, अब सम में क्या है 3 है ना, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। ओके, तो नाउ सम में क्या आ गया आपका 6 आ गया, सम कितना हो गया 6 हो गया। अब आई प्लस प्लस आई यहाँ पे क्या होगा मेरा 1 से इंक्रीमेंट होगा, अब आई कितना होगा यहाँ पे 4। अब अगेन यहाँ पे इस लूप के अंदर वापस से हम चल रहे हैं, कंडीशन चेक होगी कि आई इज लेस देन इक्वल टू 7 है क्या, जो मेरा आई क्या 4 है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 7 है, यस बिल्कुल है, तो आई कितना यहाँ पे 4 है मेरे पास, और सम कितना है 6 है, यानी कि 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 कहाँ पे अपडेट होगा आपके सम नाम की वेरिएबल में अपडेट होगा, यानी कि सम कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया। एक्चुअली मैं यहाँ अपडेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ स्पेस यहाँ पे मतलब लेकर चलना है, तो थोड़ा सा उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अपने सम को मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, ठीक है। सम कितना हो गया मेरे पास 10 हो गया, आई यहाँ पे जो मेरा इंक्रीमेंट हुआ, अब इंक्रीमेंट होके कितना होगा 5 होगा। नाउ आई बिकम्स 5, अगेन यहाँ पे जो इस लूप से हम अंदर ही है, अब इस लूप में ही है, वाइल लूप के अंदर ही है, तो वहाँ पे कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन इक्वल टू 7, क्या 5 जो है 7 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि सम में कितना अपडेटेड है 10 अपडेटेड है, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया आपका 15 हो गया। अब सम में यहाँ पे कितना आ गया 15 हो गया। अब क्या है आई प्लस प्लस है, इसके बाद आई जो मेरा क्या होने वाला है इंक्रीमेंट होने वाला है, आई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अगेन वापस आएंगे इस वाइल लूप के अंदर, अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि 6 इज लेस देन इक्वल टू 7 है, बिल्कुल है, तो आई में क्या है 6 है, और सम में कितना है अपडेटेड है 15 है मेरा सम, ठीक है। सो 15 प्लस 6 कितना हो गया आपका 21, 21 कहाँ पे अपडेट होगा सम में अपडेट होगा, तो ये कितना हो गया आपका 21 हो गया। अब नाउ आई क्या होगा मेरे यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, अब आई कितना हो गया 7 हो गया, अगेन हम वापस आएंगे इसी लूप के अंदर, अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि 7 इज लेस देन 7 है, जी नहीं है, बट 7 इक्वल टू 7 है, यस ऑब्वियसली है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 प्लस 21, आई कितना 7 है और सम में कितना आपका 21 है, ठीक है, 7 प्लस 21 कितना हो गया 28। अब जो 28 है वो किस में आके अपडेट होगा सम में, तो सम मेरा कितना होगा यहाँ पे 28 हो गया सम। अगेन यहाँ पे आई मेरा जो है 1 से इंक्रीमेंट होगा, आई कितना होगा मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है। अगेन वापस आएंगे इस लूप के अंदर, फिर से कंडीशन चेक होगी कि आई इज लेस देन इक्वल टू एन, तो आई क्या 8 है, क्या 8 7 से लेस है, क्या 8 जो है 7 से छोटा है, नहीं है, क्या 8 7 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, तो जो वाइल लूप जो हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। अब एक्चुअली यहाँ पे सम जो हमारा प्रिंट तो हो गया 28, बट हमको इसको अपनी स्क्रीन पे शो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करना होगा, प्रिंट एफ द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स is percentile d न्यू लाइन कैरेक्टर कॉमा सम, तो क्या हो जाएगा इससे मेरा सम प्रिंट हो जाएगा, यानी कि मेरे पास एक मैसेज आएगा कि दी सम ऑफ द नेचुरल नंबर इज़, और ये सम में रखी हुई वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी इस पूरे मैसेज के बाद में। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे 28 अपडेट हो जाएगा। अब नाउ रिटर्न 0 एंड मेन फंक्शन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो था इस पूरे प्रोग्राम का ड्राई रन। चलिए आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पे कोड आईडी में देख लेते हैं इसका एग्जीक्यूशन कि कैसे जो हमारा प्रोग्राम वहाँ पे एग्जीक्यूट होने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, वही सेम प्रोग्राम जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
अब चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। और जो एंटर दी साइज़ यहाँ पे बोल रहा है हमको, तो हम उसको 7 जो है साइज़ देने वाले हैं। अब लेट्स सी इन 7 नेचुरल नंबर्स का सम क्या आने वाला है। आएगा तो वैसे 28 ही, बट फिर भी इसको हम एक बार जो है एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि कितना क्या हमारा आउटपुट आता है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स इज़ 28। तो जो हमारा आउटपुट है वो एकदम करेक्ट आया है। इसी तरह से आप बाय रैंडमली अपना साइज जो है यहाँ पे दे सकते हो यूज़र को, कि आप जैसे कि 10, 20 और वट एवर एल्स जो कि आप देना चाहते हो। ठीक है, सो ये था इस पूरे प्रोग्राम का ड्राई रन एंड एग्जीक्यूशन गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है सब कुछ समझ में आया होगा। सो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ में। सो टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।